Om Shanti, and good evening to all of you. It's a rare privilege to have Shivani Bahan with us, and as a matter of fact, when we organize the program of this conference, we always make it a point to find out if it suits Shivani Bahan. Shivani Bahan has endeared herself. She is loved all over the world, in all the 5 continents. You'll be surprised. Recently I was in the US about 3 weeks back, and wherever I went, the moment anyone knows that you are associated with the Brahma Kumaris, the first question is, do you know Shivani? Shivani Bahan is watched by millions across the globe. Many people who cannot watch her because they are busy at work, they record all her talks. But as far as we are concerned, Shivani Bahan has been a great crowd puller, and wherever we have a program, everyone wants to have some time or some pictures done with her. Today, what we are going to do with her is have a dialogue in terms of as it comes. One of the first questions I want to put to her is something which is coming from me, myself. Shivani Bahan, most of them are doctors. They believe probably in the theory of evolution by Darwin, Charles Darwin, that the man has evolved from the apes. And if you look at the genetics, genomics, then we know that 98.4% of the genetic makeup of a human being is almost the same as in the apes, chimpanzees, orangutans, who are our predecessors. And this evolution took almost 5 million years. And here in Baba's knowledge, the knowledge of Brahma Kumari's Raj Yoga, where Baba tells us, when we say Baba, we talk of Paramatma. Baba tells us that we were deities. हम देवता से उतरते उतरते मनुष्य बने, और अब हम एकदम नीचे की श्रेणी पर आ गए हैं, और बाबा आए हैं हमें वापस देवता बनाने, नर से नारायण बनाने, नारी से लक्ष्मी बनाने. So there's always a conflict in the minds of those who read medicine, evolution, and the Baba's knowledge. I'm not sure whether we have a specific answer, but what is your feeling on this question? Om Shanti. Good evening. जो प्रश्न अशोक भाई ने अभी पूछा, तो हो सकता है आपके अभी तक जो राजयोग शिविर आपका शुरू हुआ है तो उसमें ये एस्पेक्ट अभी कवर नहीं हुआ. परमात्मा जब आकर इस सृष्टि पर हमें ज्ञान सुनाते, तो सबसे पहली बात जो हमें बताते हैं वो हमारा अपना सत्य परिचय. एंड फिलॉसफी में भी, रिलीजन में भी अगर हम देखें तो everyone said that the most important question which needs an answer is who am I? And if who am I gets answered, then you can answer anything in the world. But then everyone said that the purpose of life was to find the answer to who am I. And they say the search is very, very long. Go on finding the answer to who am I. But परमात्मा ने आकर who am I का एक लाइन में आंसर दे दिया. And at the Brahma Kumaris, it's not about finding the answers. It's about now experiencing the answers. If we spend our whole life in finding the answer to who am I, finding the answer to who is God,
then when will we enjoy the experience and the relationship with I and God? And आज दिन तक तो हमने सुना कि अनेक जन्म बीत जाते हैं सिर्फ जानने में कि मैं कौन और परमात्मा कौन. और जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो 2 घंटा लगता है. पहले घंटे में मैं कौन और दूसरे घंटे में परमात्मा कौन. और उसके बाद से शुरू हो जाता है ढूंढना नहीं, लेकिन जो मिल गया है उसके साथ एक सुंदर सा रिश्ता. अगर ढूंढते ही रहेंगे तो एंजॉय कब करेंगे फिर उसको. सो द सर्च एंड्स व्हेन वी कम हियर. एंड जो परमात्मा ने आकर हमें बताया इज व्हाट यू सॉ दिस मॉर्निंग सेशन, कि हर आत्मा ओरिजिनली परफेक्ट है, पावरफुल है, प्योर है. इट्स लाइक द कलर ऑफ द साड़ी दैट आई एम वेयरिंग. It's perfect white, pure white, absolutely. But now to wear this sari and go on a 2 or 3 day journey in the train. So what will happen? Daag lagenge na? And suppose all of us wear the same color sari or the same color white cloth and we go on a 2 day journey in the train. हर एक की ड्रेस पे दाग लगेंगे. हर एक की ड्रेस पर एक जैसे दाग लगेंगे? एक जैसे लगेंगे? नहीं. लेकिन हर एक की ड्रेस पे लगेंगे ही थोड़ा बहुत. किसी पर थोड़ा कम, किसी पर थोड़ा ज्यादा, किसी पर कोई एक पर्टिकुलर दाग कम, किसी पर एक पर्टिकुलर दाग ज्यादा. लेकिन हर एक ओरिजिनली क्या था? प्योर. कैसे पता चलेगा कि हम ओरिजिनली क्या थे? आज भी हम क्या मांगते हैं? आज किसी से भी पूछो, चाहे इस हॉल में या दुनिया में जाकर किसी से भी पूछो, आपको क्या चाहिए? सो व्हाट विल द आंसर दैट विल कम आउट? राइट? क्यों चाहिए? क्योंकि वो हम ओरिजिनली थे, आज हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा. सो इट सेज चाहिए चाहिए. अगर हमने उसका कभी अनुभव नहीं किया होता, इट विल नेवर कम. चाहिए मांगते वो ही हैं जो कभी ना कभी अनुभव किया था. वी ऑलवेज सर्च फॉर ओनली दैट व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस्ड सम टाइम और द अदर. दैट सम टाइम कुड बी येस्टरडे और दैट सम टाइम कुड बी very, very, very long back. So now there is no practical proof, there is no scientific proof. It's only about thinking and see what appeals to you logically. What appeals to me logically is that yes, I was pure, and over a period of a very, 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 very long journey, my sanskars have changed. And वो आप अपनी यात्रा में भी देख सकते हैं. आप अगर अपना ध्यान नहीं रखें तो आपको ये लगेगा कि आजकल मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है. लगता है? ऐसा नहीं लगता कभी? लगता है? नहीं लगता. कई बार हमें लगता है छोटी छोटी बातों में मैं बिना बात के इरिटेट हो रहा हूं. पहले तो नहीं होता था ना ऐसे. बच्चे जब होते हैं उनका चेहरा देखें कैसा होता है. Why do we get attracted towards children? What do they have? What do they have? Purity. अब वही आत्मा है, वही बच्चा है, लेकिन 5 साल बाद देखें चेहरा, फिर 10 साल बाद देखें, फिर 20 साल बाद देखें और आज 40 साल बाद देखें. That purity seems to fade away because ego is taking its place. So even in a journey of this lifetime, we can see that we moved from being pure to an ego stage. And परमात्मा ने आकर उसी चीज को एक बड़े पर्सपेक्टिव पे दिखा दिया कि you have moved from being pure to what you are today, the ego stage. तो जब हम complete pure थे, we had divine qualities. And वो divine qualities को हम कहेंगे देवी देवता. ईगो 0. मैं आत्मा हूं, ये हर एक को नेचुरल याद था. आज सारा दिन में आपको कितनी बार याद रहता है कि मैं आत्मा हूं? सारा दिन में. आत्मा शब्द सुना था सबने या आज पहली बार सुना? सबने सुना था ना पहले. सत्संग में सुना होगा, प्रवचन में सुना होगा, नहीं तो कोई भूत की पिक्चर देखते हैं तो उसमें सुना होगा. बट आत्मा शब्द
सबको मालूम, फिर भी the whole day how much do I ever remember that I am a soul talking to another soul? That is, we have reached a stage of 100% body consciousness. But it began from 100% soul consciousness. आपने अगर कोई रिंग पहने हैं, कोई घड़ी पहने हैं, जब आप पहले दिन पहनते हैं, you are aware that you're wearing it. After a few months, अब वो एक हिस्सा बन चुकी है. तो आत्मा ने जब सबसे पहले शरीर लिया, इट वॉज अवेयर कि मैंने ये शरीर पहना है. ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैंने पहना है, मैं आत्मा हूं. दैट वॉज 100% सोल कॉन्शियसनेस, 100% प्योरिटी, 100% पावर, देवी देवताएं. लेकिन शरीर पहने रखा. आज इस स्टेज पर पहुंच गए, मैं शरीर हूं. So that's the journey from 100% soul consciousness to 100% body consciousness, and now is going to be the jump from 100% body consciousness to 100% soul consciousness. That is what God has come for, because the time is going to go through a change. And so He is preparing us for a change. Do you agree time is going to go through a change now? Yes? आप न्यूज़ चैनल्स पे सुनते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में? आने वाले समय में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हाँ? आप मानते हैं कि प्रलय होने वाली है? आप मानते हैं? हम भी नहीं मानते. परमात्मा भी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई विनाश नहीं होने वाला है, कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन दुनिया परिवर्तन होने वाली है. The world is not coming to an end, but yes, the Kali Yuga is coming to an end. The old world is going to change to a new world, a perfect pure world that we all wanted. But वो change आएगा कैसे? जब आत्माएं अपने आप को चेंज करेंगी. सो दैट इज व्हाट ही हैज कम फॉर. आपको कल शाम से आज में ही अपने अंदर चेंज दिखाई दे रहा होगा. दिखाई दे रहा है? यस? कैन यू फील अ चेंज इन योरसेल्फ? दिस इज द जर्नी कि अब हम अपने संस्कारों को फिर से बॉडी कॉन्शियस से हटाकर फिर से सोल कॉन्शियस की तरफ ले जाएंगे. तो अब हम मनुष्य से फिर किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? से इट फील्स नाइस. आपको लगता है हम सब देवी देवताएं बन सकते हैं? आपको लगता है हम देवी देवताएं बन सकते हैं? कुछ भी नहीं है. देवी देवताएं क्या? आत्मा जब कंप्लीट प्योर. मनुष्य क्या? जब आत्मा थोड़ी नीचे. और आज तो हम कहते ये तो मनुष्य जैसा भी व्यवहार नहीं करता. कहते हैं ना, इसका व्यवहार तो राइट. सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू व्हाट वी ओरिजिनली आर. एंड जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे तो ये एक्सपीरियंस होता है दैट आई द सोल आई एम गोइंग बैक टू माई ओरिजिनल क्वालिटीज, व्हाट आई एम कंफर्टेबल विथ, व्हाट मेक्स मी फील वेरी नाइस. आज सुबह से बहुतों ने कहा और बहुतों ने प्रश्न भी लिख के दिया कि गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा. बट फाइनली अपने आप से पूछना कि अच्छा कब लगता है? When do you feel nice and comfortable? That is the soul's original qualities. मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम आत्माएं देवता बनने वाली हैं. मनुष्य से देवता की जो हमारी सफर है ये यहाँ से शुरू होती है. और ये शुरू होती है क्योंकि हम परमात्मा में मान रहे हैं कि यहाँ परमात्मा आया हुआ है. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. अनलेस अनटिल वी ब्रिंग अ बिलीफ सिस्टम which is close to reality, then and then only we can see the reality in real. What exactly what we are, when we go to medical schools, when we read science, of course there's a tremendous research that goes on in the subjects, but the evolution
even evolution has a lot of conflict with the many other beliefs, especially Christianity. They believe that God created the race, God created the man, and therefore they think of intellectual design. There are many questions which come, but when we talk of millions of years, we get lost. I think it is better that we change our belief systems. This is an easier belief system to follow, because thereby we can change our own life to a better and higher ideals. बाबा हमें बहुत सम्मान देते हैं. बाबा हमें कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी हो, आप रहम दिल हो, आप महादानी हो. ये हमारे डॉक्टर से ये जरूर इस सम्मान के लायक है. तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस सम्मान के बारे में कुछ आप डॉक्टर्स को बताएं, कौन से सम्मान से उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है. स्वमान मीन्स स्व को मान देना, सेल्फ रिस्पेक्ट. अब सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी कैसे क्रिएट होती है? Our self-esteem. Most of us today, I don't know if you agree, ask yourself, most of us today don't have a very high self-esteem. Do you agree? How would we know whether we have a high self-esteem or no? अगर किसी की कोई भी कही हुई बात मुझे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करती है, that means my self-respect is low, because I'm dependent on other people's opinion for my self-respect. If someone says, you're nice, and then someone says, we start getting affected, which means my respect is dependent on other people. Our self-respect today is also dependent on what we have acquired in our lifetime. The bigger my hospital, the higher my self-respect. The bigger my car, status. The better my mobile phone, the higher the amount of degrees written on my nameplate, I feel better. हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा कुछ न कुछ बाहर पर डिपेंडेंट थी. डू यू फील दैट वे और नो? यस. And that's because people respected us more when they saw more of all these things. And so we thought we need more of this to get respect from people. And in the process, our self-respect was, हमारी self-respect बननी शुरू होती है जब हम इतने से होते हैं. आज बहुतों ने कहा कि बच्चों को तो डांटना ही पड़ता है. हमारी एनर्जी जो एक बच्चे की तरफ ट्रैवल करती है, वो एक बच्चे का अपना इमेज क्रिएट करने में मदद करती है. Whatever energy you transmit to a child, the child uses that energy to create a picture of himself. Let's say you have to tell your child, you're no good. तुम्हारे से नहीं हो सकता ये. देखो बाकी सब कितना अच्छा करते हैं, तुम कितना भी ट्राई कर लो, कैसे होगा तुम्हारा भविष्य, क्या होगा तुम्हारा आगे. हमें लगता है हम मोटिवेट कर रहे हैं. ये जो हमने सेंटेंसेस कहे या सोचे, वो बच्चा उस एनर्जी को लेता है और अपनी पिक्चर ड्रॉ करता है. आई एम नो गुड, मेरे से नहीं हो सकता, आई एम वेरी स्लो. अब इस बच्चे को आप 30 साल के बाद मिलें एंड टेल हिम यू आर वेरी गुड, यू कैन रियली डू इट. दैट पर्सन सेज नो, आई एम नो गुड, I can't do it. Other people can do it better than me. Why? Who had told him that? Who told him that? Those people who are perfect. इस एज में our parents are perfect. So energy transmitted from a parent to the child helps the child to create their self-esteem. So be very careful what energy you transmit to your child. अब बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, परमात्मा आकर हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं बाय टेलिंग अस हु वी एक्चुअली आर. एंड द एनर्जी दैट ही ट्रांसमिट्स, वी यूज इट टू क्रिएट अ न्यू इमेज
of ourself. Even a simple thing like, I am a peaceful soul. What is the image that gets created about yourself? What's the image that gets created? And the other side is, मैं तो गुस्से वाला हूं. दो अलग अलग इमेज. Can you create two other images about yourself? अब परमात्मा आकर हमें ऐसे बहुत सारे स्वमान देते हैं. परमात्मा कहते हैं, मैं सर्वशक्तिवान हूं. क्योंकि हमने आज दिन तक क्या कहा? गॉड इज ऑलमाइटी. तो वो सर्वशक्तिवान है. हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम उसके बच्चे हैं. तो हम कौन हो गए? हम कौन हो गए? आपका सरनेम क्या है? मेहता. हेमानी. सो मिस्टर हेमानी. बेटा हो गया मास्टर हेमानी. तो अगर वो मिस्टर सर्वशक्तिवान, तो हम कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिवान. अगर वो विश्व कल्याणकारी है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम कौन हो गए? हम कौन हो गए? मास्टर विश्व कल्याणकारी. वो विश्व परिवर्तक है, तो हम कौन हो गए? दिस इज हाउ ही कम्स एंड रिमाइंड्स अस whom we are. आज जो मुरली हमने सुनी, हर रोज हम मुरली सुनते हैं परमात्मा के महावाक्य. तो परमात्मा ने आज कहा कि तुम तो भगवान से भी बड़े हो, क्योंकि भगवान ही तुम्हारा सेवक बन जाता है, तो तुम तो उससे भी बड़े हो गए. भगवान आज आकर तुम्हें पालना देता है, तुम्हारी सेवा कर रहा है, तो तुम आत्मा कौन हो? दिस इज ही स्पीकिंग टू अस. When he says this to us and transmits that right energy which we need, it helps the soul to come out. Instead of saying to ourselves, नहीं पर मेरे से नहीं होता, मुझे डर लगता है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं. He comes and changes the energy that he transmits and what he says to us. रोज हम एक स्वमान लेते हैं. One title that he gives us. He says, मैं शांति का सागर हूं, ocean of peace. तो बच्चे क्या हो गए? बच्चे क्या हो गए? Can everyone just say it? शांति का सागर कैसा होगा? शांति का सागर कैसा होगा? सागर के किनारे जैसे ही जाकर खड़े होते हैं तो क्या होता है? अब आप शांति के सागर हैं, तो आपके कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको क्या होगा? क्या होगा? सो व्हेन यू क्रिएट दिस थॉट, मैं शांति का सागर का बच्चा, मैं मास्टर शांति का सागर हूं. इट्स अ थॉट, बट द वाइब्रेशन, द एनर्जी दैट इट विल ट्रांसमिट, वो एनर्जी कैसे हो जाएगी? एंड ये एनर्जी, व्हाट वी स्पोक अबाउट दिस मॉर्निंग, ये एनर्जी अक्रॉस द टेबल जाएगी. एंड ये जो सामने आत्मा बैठी है, उसकी स्थिति को भी क्या कर देगी? सो दिस इज आवर रोल. अगर हर रोज हम परमात्मा का एक स्वमान ले लें ऐसे, एंड दैट इज व्हाट वी गेट इन द मॉर्निंग मुरली क्लास. टुडे सम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर सेइंग, क्या करना है आगे, क्या करना है टू कंटिन्यू दिस लाइक दिस, टू बी ऑन दिस जर्नी. एवरी मॉर्निंग टेकिंग दैट फ्रॉम हिम, दैट्स कॉल्ड आवर मुरली क्लास एट द सेंटर. हर रोज सुबह जब पिता, टीचर ऐसी बातें भरता है, तो इमेज चेंज हो जाती है अपने बारे में, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, एंड एनर्जी विच ट्रांसमिट्स टू एवरीबडी एल्स ऑटोमेटिकली चेंजेस. वो विश्व कल्याणकारी है. हम सब कौन हो गए? वो सबके दुख हर के सुख देता है. ऐसा ही बोलते थे ना आज दिन तक भगवान को. क्या बोलते हैं उसको? वो दुख हरता, सुख करता है. और फिर दूसरी तरफ से कहा, हम उसके बच्चे हैं. तो हम कौन हो गए?
मास्टर दुख हरता सुख करता, ना के दुख, ना अब हम किसी को दुख दे सकते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ना हम दुखी हो सकते हैं, क्योंकि हम तो औरों के दुख को दूर करके सुख देने वाले हैं। आपके बच्चे क्या बने? अब कोई बच्चे मान जाते हैं, कोई बच्चे नहीं मानते हैं, तो वो भगवान है ना, तो वो क्या चाहता है, मेरे बच्चे क्या बने? मेरे बच्चे क्या वैसा बने, या फिर अपनी नटखट नटखट मस्ती करे? But he is come to make us like this, and we are seeing that we're all on the journey, and that's why it was always said God made man in स्कूल में गए, आप डॉक्टर बन के बाहर निकले, अब इस कॉलेज में आए हैं तो क्या बन के बाहर निकलेंगे? क्या बनकर बाहर निकलेंगे? मनुष्य आएंगे, एडमिशन कराने के लिए। हाँ, तो कस लाइक हिम, तो कभी लेकिन मैं देखता हूं, मेरे साथ में भी गए थे, जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है और आप उनको कहें नहीं आप बहुत अच्छे हैं,
मैं था तो आपने कहा था मैं परमात्मा की मुरलियों के सिवा मैंने